والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، مسنون اعمال اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ چونکہ انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں چین و سکون حاصل ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، گھر میں خوشحالی ہو۔ اس کے لیے اگر ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور پاکیزہ تعلیمات کا علم نہیں ہوگا تو پھر وہ بدعقیدگی کا بھی شکار ہوگا، غیر ضروری چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہوگا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں کے اعمال بھی سکھائے، مختلف اذکار بھی بتائے، مختلف قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کے طریقے بھی سکھائے کہ جس کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں ایک مسلمان کو بہترین، پرسکون اور خوشحال زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں۔ جب ایمان اور یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ بھروسہ کر کے ایک مسلمان صبح و شام کے اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے بڑھ کر کون سی چیز ہوں گی کہ جس کے اندر اثر نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بڑھ کے کون سے وظیفے ہوں گے کہ جن کے اندر تاثیر نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں کو واقفیت نہیں رہتی، اس وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سینوں کے مسائل کے لیے حل اور شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم شروع سے آخر تک کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب انقلاب بھی ہے، اور انسانوں کے ظاہر اور باطن، جسم اور روح دونوں کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ جو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ جو صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھے گا یا روزانہ کسی ایک وقت کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنے کا اپنے اوپر ذمہ ڈالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات ضرور انسان کی زندگی میں ظاہر فرماتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، سنتیں ہیں جس کو اپنانے کا حکم دیا گیا، اور ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں رکھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق
अमल करने वाले बने। अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह ने नबी की ज़िंदगी में इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना और उसवा रखा है। अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी के हर मोड़ के लिए, ज़िंदगी के हर लाइन के लिए और ज़िंदगी के हर मौके के लिए तालीमात अता फरमाई है कि जिसको इख्तियार करेंगे, अपनाएंगे तो कामयाब होंगे। एक मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु बिमा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिही, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उनको मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके नबी की सुन्नतें हैं कि जिन पर अमल करेंगे, इख्तियार करेंगे तो इंसान गुमराही का शिकार नहीं होगा। एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उन लोगों के जो मेरा इनकार करेंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इनकार करने वाले कौन होंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी क़द अबा, कि जो मेरी इताअत करेंगे, पैरवी करेंगे, फर्माबरदारी करेंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे, और जो मेरी नाफरमानी करेंगे, मेरी पैरवी नहीं करेंगे, वही मेरा इनकार करने वाले शुमार किए जाएंगे। यानी नबी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए इसलिए भेजे गए हैं कि उनकी सीरत के हर वाक़ये से इंसान सबक ले, तालीमात हासिल करने वाला बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई है, आमाल बताए हैं कि जिनका एहतमाम करेंगे तो ज़िंदगी में आने वाले मसाइल और मुश्किलात से इंसान बच सकता है, महफूज रह सकता है। दुआ और अज़कार जो हदीसों में बयान किए गए हैं उसको हम एहतमाम के साथ करेंगे, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख कर करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। यकीन दिल के अंदर नहीं है और दुआएं पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे तो उसके बारे में हमारे अंदर कैफियत नहीं है कि इससे फ़ायदा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारे अंदर ख़ुद यकीन नहीं है तो उसके असरात कैसे पैदा होंगे। तो इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। पहली चीज़ कि जिससे ज़िंदगी में बरकतें आती है, खुशहाली आती है, इंसान शर से, फितने से, मुसीबत से, नागवार चीज़ों से बचता है, वो नमाज़ों का एहतमाम करना है, क्योंकि नमाज ये इंसान को अल्लाह से जोड़ने का ज़रिया है। जो बंदा जिस दर्जे नमाज का एहतमाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दर्जे उसकी ज़िंदगी में खुशहाली, उसकी ज़िंदगी में खैर और बरकतें रखते हैं। चूँकि जो बंदा बार बार अल्लाह के सामने हाजिर होगा, अल्लाह के सामने हाथों को उठाएगा, अल्लाह से दुआ करेगा, इल्तिजा करेगा, अपनी ज़रूरियात, अपनी हाजात को अल्लाह के सामने बयान करेगा, अल्लाह यकीनन उसकी दुआ को सुनेंगे, उसके आने को पसंद करेंगे और अल्लाह के सामने हाथों के उठाए जाने को अल्लाह तबारक व तआला रायगा जाने नहीं देंगे। तो सबसे पहला काम एक मुसलमान का ये है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में खैर लाना चाहता है, बरकतें लाना चाहता है, वो नमाज का एहतमाम करने वाला बने। और नमाज के लिए वज़ू करते हैं, नमाज ही के लिए नहीं बल्कि हर वक़्त के लिए वज़ू से रहने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। जैसे ही हमारा वज़ू टूटा, हम ज़रूरत से फारिग हुए या कोई और मसला पेश आ गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम फौरी वज़ू का एहतमाम करो। इस वजह से कि जो बावज़ू रहता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र में दराज़ी अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर खैर अता फरमाता है। ज़्यादा बावज़ू रहने वाला एक बुज़ुर्ग है ताबईन में से हज़रत अबू जाफ़र बाक़र रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक कौल है, फरमाते हैं कि जो इसका एहतमाम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे अता फरमाएंगा। आगे उसको मैं मज़ीद ज़िक्र करूँगा। तो बहरहाल पहला अमल कि जिसके ज़रिए खैर और बरकतें आएंगी वो नमाज का एहतमाम। दूसरा बावज़ू रहने का एहतमाम। हम सिर्फ ये समझते हैं कि नमाज के लिए वज़ू कर लेना काफ़ी है, तो ये तो ज़रूरी है, बग़ैर नमाज के, बग़ैर वज़ू
के हम नमाज नहीं पढ़ सकते, बगैर वज़ू के हम हाथ में पकड़ कर कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते। लेकिन एक मोमिन अगर ज़िंदगी में मामूल बना ले कि मैं वज़ू से रहने का अहतमाम करूँगा, तो ये वज़ू से रहना भी उसके लिए खैर और बरकत का ज़रिया बनेगा। उसके बाद सुबह शाम कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो सुबह सूरह यासीन की तिलावत के ज़रिए अपने कामों का आगाज़ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके कामों को आसान कर देंगे। हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर देखें तो हमको मालूम होगा कि हम कितना कुरान करीम पढ़ते हैं। महीनों हफ्तों गुजर जाते हैं, कुरान करीम पढ़ने की नौबत नहीं आती। न मस्जिद में नौबत आ रही है पढ़ने की, न घर में नौबत आ रही है पढ़ने की, न मर्दों को मौका मिल रहा पढ़ने का, न औरतों को मौका मिल रहा पढ़ने का। तो फिर उसके बाद आप मैं शिकायत करेंगे कि खैर नहीं आ रहा, बरकतें नहीं आ रही, तो बरकतें और खैर कहाँ से आएंगा। एक मुसलमान अगर अपना मामूल बनाए कि मैं रोज़ाना फजर के बाद कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाऊंगा, या अगर उस वक़्त में किसी वजह से नहीं कर सक रहा हूँ तो दीगर नमाजों के मौके पर या दिन के किसी वक़्त में मैं अपना मामूल बनाऊंगा कि रोज़ाना में आधा घंटा, आधा पारा, एक पारा, या कम से कम जितना मुझसे मुमकिन हो सका मैं तिलावत करूँगा, तो उस तिलावत का असर और उसके बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में अता फरमाएंगे। तो इस अंदाज में कुरान करीम की तिलावत से ज़िंदगी का आगाज़ करना और सुबह शाम के आगाज़ करने का हुक्म दिया गया है। और रात का वक़्त है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह वाक़िया के पढ़ने का हुक्म दिया और फरमाया कि जो रात में मगरिब के बाद से लेकर सोने तक का वक़्त है कि जो रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा, अल्लाह तंगदस्ती से, फ़क़्र फ़ाक़े से, मोहताजी से बचाएगा। हमारे पास अल्लाह के नबी की बताई हुई ये हिदायत और रहनुमाई मौजूद है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते और परेशानी आ रही, तंगदस्ती आ रही, माली मुश्किलात से इंसान दो चार हो रहा, घबरा रहा, परेशान हो जा रहा और इस तरह उस तरह के अकीदे ख़यालात ज़हन दिमाग में ला रहा। लेकिन जो अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने बताया है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़िया है कि जब उनका इंतकाल का वक्त था, आखिरी वक़्त है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो मुलाकात के लिए, इयादत के लिए, मिजाज कुर्सी के लिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाने के बाद उन्होंने फरमाया मा तस्तकी, कि तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं मुसलमानों का ज़िम्मेदार हूँ, अगर आप मेरे सामने ज़िक्र करेंगे तो मैं उसको पूरी करूँगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ज़ुनूबी, मेरी परेशानी, मेरे गुनाह हैं। ये कौन फरमा रहे? अल्लाह के नबी के सहाबी, और आम सहाबी नहीं बल्कि वो सहाबी जो इस पूरी उम्मत में कुरान को सबसे बेहतरीन पढ़ने वाले सहाबी होने का एजाज़ और शरफ अल्लाह ने जिनको बख्शा था, इस उम्मत में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल को हल करवाने वाले सहाबी थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमा रहे कि मुझे इस वक्त जो परेशानी लाहिक है वो मेरे गुनाहों के बारे में परेशानी है। जो जितना ज़्यादा नेक बनता है उसको उतनी ज़्यादा अपने आमाल की फ़िक्र पैदा होती है, और जो नेक नहीं रहता उसको दूसरों के आमाल की फ़िक्र हमेशा रहती है, वो दूसरों पर नज़र रखने वाला बनता है। और जो नेकी के रास्ते पर चलने वाला बनता उसको हमेशा अपने आमाल के बारे में फ़िक्र पैदा रहती है कि मालूम नहीं मेरा क्या बनेगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने फरमाया कि मुझे इस वक्त जो परेशानी तकलीफ है वो गुनाहों की परेशानी है। तो उन्होंने फरमाया कि मा तश्तही, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने फरमाया रहमत रब्बी, मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मेरे साथ रहम का मामला कर दे। उसके बाद हज़रत उस्मान ने पूछा क्या मैं तुम्हारे लिए हकीम का, तबीब का, डॉक्टर का इंतज़ाम कर दूँ? तो उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर ने ही, तबीब ने ही मुझे बीमार किया है, यानी अल्लाह ही है जो सब मर्ज़ों में शिफा देने वाला, उसी ने मुझे बीमार किया है। उसके बाद उन्होंने फरमाया क्या मैं आपको कुछ अतिया पहुंचा दूं, आपकी खिदमत में पेश कर दूं? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इस वक्त किसी माल की ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया आपको अगर ज़रूरत नहीं होगी तो आपके बाद आपके घर वालों को ज़रूरत होगी, आपकी बच्चियों को इससे पैसे काम आ जाएंगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप ये समझते हैं कि माल के ज़रिए मेरी बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? नहीं, अल्लाह के नबी से मैंने सुना है कि जो सूरह वाक़िया को रात के वक़्त पढ़ता है अल्लाह फ़क़्र फ़ाक़े में मुब्तला नहीं करता। मैंने अपनी सारी बच्चियों को सूरह वाक़िया याद भी दिलाया है और इसकी ताकीद भी कर दी है कि वो रोज़ाना इसका एहतमाम करने वाले बने।
3 रुकुओं पर छोटी सी एक सूरत 27वें पारे के अंदर है। अगर एक मुसलमान अल्लाह के नबी के इन बताए हुए इरशादात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में इन अमल को लाएगा तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उसके असरात, उसके बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में ज़ाहिर फरमाएगा। इन लोगों को इतना ज़्यादा यकीन और इतना ज़्यादा एतमाद था अल्लाह के नबी के बताए हुए इरशादात पर कि वो 100% होकर रहेगा। उनको यकीन था कि जो सूरह वाक़िया की तिलावत का रोज़ाना रात के वक़्त एहतमाम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में फ़क्र और फाक़े को दाखिल नहीं करेगा, वो तंदुरुस्ती के मसाइल और मुश्किलात से महफूज रखेगा, अल्लाह उसका इंतज़ाम फरमाते रहेगा। जब ईमान वाला यकीन के साथ अमाल को अंजाम दे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगियों में बरकतों को ज़ाहिर फरमाता है। इसी तरह कुरान करीम की एक मशहूर आयत है आयतुल कुर्सी, छोटी सी बिल्कुल एक आयत है, 3 पारे के 2 रुकू के अंदर इब्तिदा में सूरह बकरा के अंदर है कि इतनी मशहूर और इतनी अजीम तरीन आयत कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुरान की अजीम आयतों में से है। और उलमा ने फरमाया कि इस आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह ने अपने इस्मे आज़म को इस्तेमाल किया है कि जिसके नाम के ज़रिए दुआ की जाएंगी तो अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का मानना यह है अल हय्य जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यह अल्लाह का इस्मे आज़म है। तो बहरहाल आयतुल कुर्सी की भी बेशुमार फजीलतें हैं और उस सिलसिले में कई वाक़ियात हदीसों की किताबों में हैं। एक मशहूर वाक़िया है कि हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा बैठे हुए थे, हम में से एक साथी उठे और उठकर बाहर गए। बाहर जाने के बाद एक आदमी उनसे मिला और उसने कहा कि अगर तुम मुझसे कुश्ती करो और मुझको हरा दो, शिकस्त दे दो, मैं तुमको एक आयत सिखाऊंगा कि जिसके पढ़ने के नतीजे में अगर तुम घर में दाखिल होते वक्त उस आयत को पढ़ोगे तो शैतान हवा खारिज करते हुए दूर तक भाग जाएगा और तुम्हारे घर में वो नहीं रहेगा। चुनाचे उस सहाबी से उस आदमी की कुश्ती हुई, लड़ाई हुई, उस सहाबी ने उनको पछाड़ दिया। पहली मरतबा उसको शिकस्त हुई, दूसरी मरतबा मुकाबला हुआ, फिर शिकस्त हुई, तीसरी मरतबा मुकाबला हुआ, फिर शिकस्त हुई। आखिर में उसने कहा कि तुम आयतुल कुर्सी यही अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इसको पढ़ा करो। जब तुम घर में दाखिल होते वक्त इसको पढ़ोगे तो शैतान तुम्हारे घर से हवा निकालते हुए भाग जाएगा और उसकी हिम्मत नहीं रहेगी कि तुम्हारे घर में रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस के रावी है, वो फरमाते हैं कि पूछने वालों ने पूछा कि वो जो बाहर तुम्हारे बैठक से गए थे वो हज़रत उमर ही होंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ हज़रत उमर ही थे कि शैतान से मुकाबला हुआ और शैतान को उन्होंने हराया और शैतान ने खुद उनको ये बताया कि आयतुल कुर्सी है कि इसका तुम एहतमाम करने वाले बनो। और हदीस में है कि जो मुसलमान नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो दूसरी नमाज तक वो अल्लाह के ज़िम्मे रहेगा। एक मरतबा हम सलाम फेरे, उसके बाद अज़कार वगैरह है, आप चाहे दुआ के बाद भी पढ़े, दुआ से पहले पढ़े, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो दूसरी नमाज के आने तक वो अल्लाह की निगरानी में और अल्लाह के ज़िम्मे रहेगा। और एक हदीस में है कि जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल रखेगा तो उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल है, यानी जैसे ही मरेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। इतनी ज़्यादा इसकी फजीलत है। एक मरतबा का वाक़िया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने मुसलमानों के बैतुल माल में गल्ला व अनाज आया हुआ था जिसको गरीबों में तकसीम करना था। वो गल्ला व अनाज की निगरानी के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मुतय्यन कर दिया कि तुम इसकी निगरानी करो। वो रात को निगरानी कर रहे, अचानक एक आदमी आया जो अपने दोनों हथेलियों में गल्ला भरकर ले जाने लगा। उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ कर पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ, बच्चे वाला हूँ, मुझे छोड़ दो। हज़रत अबू हुरैरा को तरस आया, उसको छोड़ दिया। अल्लाह के नबी से उन्होंने बयान नहीं किया। सुबह दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हाल है? तो अल्लाह के नबी से हज़रत अबू हुरैरा ने रात का पूरा वाक़िया जिक्र किया, ऐसा ऐसा हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज फिर वो आएगा, आज रात को फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा को यकीन हो गया कि आज फिर आएगा, इस वजह से कि अल्लाह के नबी ने बताया है। अब वो ताक में इंतजार में है कि वो कब आए तो मैं उसको पकड़ूं। वो आया फिर बैतुल माल में और गल्ला अपने हाथों से भरकर ले जाने लगा। हज़रत अबू हुरैरा फिर पकड़ लिए और कहने लगे मैं तुझे अल्लाह के नबी के पास ले जाऊंगा। उसने फिर मन्नत समाजत की कि मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ, बच्चे वाला हूँ, फाके में मुब्तला हूँ। हज़रत अबू हुरैरा को तरस आया, उसको फिर छोड़ दिया। दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने फिर पूछा अबू हुरैरा क्या मामला हुआ? हज़रत अबू हुरैरा ने पूरा वाक़िया सुनाया। अल्लाह के नबी ने कहा आज फिर वो रात को आएगा।
जाएगा। चुनांचे तीसरे दिन फिर आया, हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम बहाने बना बना कर जा रहे हो, आज मैं तुम्हें अल्लाह के नबी के पास पकड़ कर ले जाऊंगा। तो उसने कहा मैं तुमको एक आयत सिखाता हूँ, तुम इसको पढ़ लो, तुम्हारा गल्ला व अनाज में कोई नुकसान नहीं होगा, शैतान कभी तुम्हारे पास दाखिल नहीं होगा। चुनांचे उसने आयतल कुर्सी सिखाई, वो चला गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर तीसरे दिन अल्लाह के नबी की खिदमत में गए। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा क्या हुआ? अल्लाह के नबी से उन्होंने पूरा वाक़िया सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा जानते हो वो कौन था? अबू हुरैरा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी नहीं जानता। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शैतान था और तुमको आयतल कुर्सी सिखा के गया है। वो झूठा है लेकिन कभी सच्ची बात भी कर देता है, वो खबीस है लेकिन कभी अच्छी बात भी बता देता है। उसने आयतल कुर्सी बता दी कि जिसके नतीजे में तुम उसके शर से, उसके नुकसान से बच सकते हो। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो रोजाना रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर सोगा तो अल्लाह तबारक व तआला एक मुहाफिज फरिश्ते को उसके लिए मुतय्यन कर देते हैं जो शैतान के असरात से इसकी हिफाजत करते हैं। सुबह होने तक वो शैतान के असरात से महफूज रहता है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये आमाल है जो अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए हैं। लेकिन हमारी सूरत हाल ये है हम इन आमाल से वाकिफ नहीं है। आखिरी सूरतें हैं मुअव्वज़ात जिसको कहते हैं, मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और मुअव्वज़ात का मतलब कुल हुवल्लाह, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। अल्लाह के नबी का मामूल था कि रोजाना रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पर जब सोने के लिए जाते तो तीन तीन मरतबा इन तीन सूरतों को पढ़ते, अपने हाथों पे फूंकते, उसके बाद अपने सारे जिस्म पर जहां तक हाथ जाता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेर लेते और ये फरमाते कि जो इसका एहतमाम करेगा अल्लाह जादू से, शैतान के असर से उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई बीमार होता किसी भी एतबार से तो अल्लाह के नबी का खुद मामूल था कि आप खुद पढ़ते अपने दस्ते मुबारक से और उसके ऊपर फूंकते और दम करते। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये आमाल मसनून जिंदगी, मसनून आमाल एक मुसलमान अंजाम देने वाला बनेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकतों को दाखिल फरमाएगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, मशहूर सहाबी है। वो एक मरतबा सहाबा के साथ बैठे हुए थे, एक आदमी आया और आकर कहने लगा कि आपका घर जल गया। तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि मेरा घर नहीं जला। थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद दूसरा आदमी आया और उसने आकर अर्ज किया आग आपके घर तक आ गई थी लेकिन आपके घर के पास आकर बुझ गई, आपका घर नहीं जला। तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया यकीन था मुझे कि आग मेरे घर को नहीं जला सकती। साथी जो बैठे हुए थे वो हैरान, उन्होंने पूछा कि अजीब व गरीब आपने जवाब दिया और इस यकीन के साथ आप गए भी नहीं, देखे भी नहीं और आपने कहा कि घर नहीं जला और आग जला नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता, आखिर वजह क्या है? तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है कि जो मुसलमान सुबह व शाम ये दुआ का एहतमाम करेगा अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम मा शा अल्लाहु काना व मा शा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो इस दुआ का एहतमाम करेगा शैतान और कोई नुकसान उसको पहुंचा नहीं सकता, कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अजीब व गरीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खे हैं। और एक बड़ी मशहूर किताब में अल्लामा इब्न अकासी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का, कि जिस वक़्त वो खलीफा मुसलमानों के नहीं बने थे, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं अपने घर की छत पर आराम कर रहा था। रात के वक़्त मैं अपने घर की छत पर सोया हुआ था, अचानक मुझे आवाज़ें आने लगी तो मैं उठकर छत के ऊपर से देखने लगा तो मेरे घर के पीछे एक खंडर था जिसमें सारे शयातीन जमा हो रहे, सारे के सारे शयातीन जमा हो गए। उसके बाद शैतानों का जो बड़ा सरदार था वो आया और आकर उसने कहा कि कौन उर्वा बिन जुबैर को मेरे पास पकड़ कर लेकर आएगा। ये उर्वा बिन जुबैर हजरत जुबैर इब्न अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे हैं, हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के बेटे हैं। तो बहरहाल शैतान ने कहा कि कौन उर्वा बिन जुबैर को मेरे पास पकड़ कर लेकर आएगा। तो शैतानों की एक टीम खड़ी हुई, गिरोह खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि हम पकड़ कर लेकर आएंगे। वो कुछ देर गए, उसके बाद वापस आए और आकर उन लोगों ने कहा कि हम पकड़ने से उनको आजिज आ गए, हमारा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं चला।
शैतान गुस्से में आया, चीख कर कहा कि कौन है जो इनको पकड़कर मेरे पास लाएगा। दूसरा गिरोह उठा, दूसरी जमात शयातीन की खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि हम पकड़ कर लेकर आएंगे। वो गिरोह, वो टीम भी गई और वापस आजिज होकर आ गई। अब शैतान इतना गुस्सा आया, इतना चीख लगाया कि हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसा लगा कि कहीं जमीन फट ना जाए। इतना गुस्से में आकर उसने कहा कि कौन पकड़ कर लेकर आएगा। तीसरी जमात खड़ी हुई, उसने कहा कि हम लेकर आएंगे। वो भी गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर के बाद खाली हाथ आए। उन्होंने कहा कि हम उनको पकड़ नहीं सके। शैतान गुस्से में आया, वहां से निकल गया, सारे शयातीन चले गए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ये सारा वाकया देखा। सुबह हुई, हजरत उरवा बिन जुबैर के घर गए, घर जाकर पूरा वाकया सुनाया और ये पूछा कि आखिर माजरा क्या है, कैसे तुम्हारी हिफाजत हुई। तो उन्होंने फरमाया मैंने अपने अब्बा हजरत जुबैर इब्न अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुबह में एक मरतबा या शाम में एक मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िशानी अज़ीमिल बुरहानी शदीदी सुल्तानी माशा अल्लाहु काना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी, जो इस दुआ को, बिल्कुल मुख्तसर दुआ है, जो पढ़ेगा तो शैतान और उसकी पूरी टीम गिरोह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बताना मकसद, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे आमाल है जो छोटे छोटे हैं। हम घर में दाखिल हो रहे, बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल होना, आयतल कुर्सी पढ़कर दाखिल होना, घर से निकल रहे बिस्मिल्लाह पढ़कर निकलना, आयतल कुर्सी पढ़कर निकलना, दुआ पढ़कर निकलना, खाना खा रहे दुआ पढ़कर खाना, पानी पी रहे दुआ पढ़कर पानी पीना, बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे दुआ पढ़कर सोना, बाहर निकल रहे दुआ पढ़कर निकलना, बैतुल खला इस्तिंजा के लिए जा रहे दुआ पढ़कर निकलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बहुत से आमाल सिखाए हैं कि जिस पर अमल करने के नतीजे में इंसान की ज़ाहिरी जिंदगी भी मुतासिर नहीं होगी और इंसान का बातिन और रूहानी जिंदगी भी मुतासिर नहीं होगी। आज ज़रूरत है, हमारे पास मसाइल है, मुश्किलात है, शिकवे है, शिकायतें हैं, हम जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, जहन दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि न जाने कौन कराए होंगे, कौन क्या कर रहे होंगे। ये सब बात की बातें हैं। पहला एक मुसलमान का अमल ये है कि वो अल्लाह के नबी की बताई हुई मसनून जिंदगी के मुताबिक जीने वाला बने, वो नमाज का एहतमाम करने वाला बने, वो दुआ का एहतमाम करने वाला बने, वो तिलावत का एहतमाम करने वाला बने, वो सुबह शाम कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करने वाला बने, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर जो अल्लाह के नबी ने मसनून दुआएं सिखाई है उन दुआओं को पढ़ने वाला बने। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में सुकून अता फरमाएंगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में राहत अता फरमाएंगे, अल्लाह मुश्किलात और मसाइल से उसको बचाएंगे। बाकी अगर कोई इन सारे दुआओं के एहतमाम के बावजूद भी किसी चीज़ में मुब्तला हो रहा, वो इंसान की तकदीर है। हम दुआओं का एहतमाम करेंगे, अल्लाह दुआओं की बरकतें, दुआओं का सवाब हमको ज़रूर अता फरमाएंगा। बाकी जो तकदीर होगी, तकदीर इंसान को पहुँच कर रहेगी। तो घरों में मुश्किलात या ज़ाती ज़िंदगी में मुश्किलात या खैर व बरकत की शिकायतों के लिए तावीज़ें लटका लेने से और चीज़ें कर लेने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं और आप सुन्नतों वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बने, सुन्नतों के मुताबिक जीने वाले बने, कदम कदम की जो सुन्नतें हैं मालूम करके ज़िंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाएगा। शुरू में मैंने एक हदीस पढ़ी थी, बेहतरीन हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अकल तय्यबन, जो पाकीज़ा रिज़्क़ खाएगा, हलाल रिज़्क़ खाएगा, व अमिल फी सुन्नतिन, और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा, व अमिन अन्नास बवाइक़हु, और लोगों को उसकी तकलीफ से महफूज रखेगा, दखल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। तीन काम करना। पहला काम करना क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हलाल रिज़्क़ का एहतमाम करे। दूसरा काम अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन्नत के मुताबिक जीने वाला बने। तीसरा काम अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये तीन काम करोगे अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। पूरा दीन का निचोड़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर जमा फरमा दिया है कि पूरी जिंदगी एक मुसलमान मर्द की, औरत की, नौजवान की, बूढ़े की, बच्चे की वो सुन्नत के मुताबिक गुजरना चाहिए। अब मैं और आप जायजा लेकर देखें, हमारे पास नमाजों का एहतमाम नहीं, तिलावत का एहतमाम नहीं, जिक्र अज़कार का एहतमाम नहीं, दुआओं का एहतमाम नहीं। अब उसके बाद थोड़े बहुत जिंदगी दुनिया है, आजमाइश हालात आते रहते हैं। अब आदमी परेशान होगा, शिकवा शिकायतें करेगा, यहाँ वहाँ भागने के अपना मशगला बनाएगा, पैसे भी ज़ाय होंगे और उसका अकीदा भी मुतासिर होगा, उसकी फिक्र भी मुतासिर होगी। तो ये इस वजह से है कि जो सुन्नत और शरीयत वाली
ज़िंदगी गुजारने की हमको तालीम दी गई थी, हम उससे हटकर जी रहे हैं। हमको दीन से कोई वाकिफियत नहीं है, दीन पे चलने का कोई जज्बा नहीं है। एक नौजवान नापाकी की ज़िंदगी गुजार रहा है, सुबह से शाम तक नापाकी, गुस्ल करना है, गुस्ल करने के लिए तैयार नहीं है, पाक साफ रहने के लिए तैयार नहीं है, और हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आएंगे तो क्या आएंगी ज़िंदगी में? तो इस वास्ते हम लोगों को इसकी फ़िक्र करना चाहिए कि अच्छी ज़िंदगी गुजारे। पहला काम 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम, और ख़ास कर फजर की नमाज पाबंदी से का साथ पढ़े, और उसके बाद इशा की नमाज पढ़े, क्योंकि ये एक जगह पढ़ने की नमाजें हैं। आप दिन भर कहाँ पर भी फिरे, आप किसी भी जगह जाएंगे, बाहर फिरेंगे, कारोबार के वास्ते, नौकरी के वास्ते, जहाँ मौका है पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे। लेकिन फजर और इशा तो वो नमाजें हैं जहाँ आदमी अपने घर, अपने ठिकाना और अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। फजर पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ देर बैठे, तिलावत करे, जिक्र करे, उसके बाद अपने काम काज में लगे, चंद दिन का एहतमाम करे। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर तुम तजुर्बा करने के वास्ते चंद दिन के पाबंद मुसलमान बनकर देखो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में असरात जरूर डालेगा, तजुर्बा करने के वास्ते। बाकी काम तो हमारा यही है कि सुन्नत के मुताबिक जीना है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।